طرح ابھی تک استعمال نہیں کر سکا. تو یہ ابھی جو شروعات ہے ہماری کامیاب جوان کی، ابھی یہ شروعات ہیں، کیونکہ بینکس کا بھی ابھی تک مسئلہ تھا. بینکس کو بھی عادت نہیں تھی نوجوانوں کو پیسے دینے کی، رسک آتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہی نہیں تھا. ایک ملک میں روایت ہی چلی گئی تھی کہ نوجوانوں کی مدد کرنے کی. امریکہ کے اندر ایک سلیکن ویلی ہے، وہ سلیکن ویلی نے امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گئی، آئی ٹی انڈسٹری کو کہاں سے کہاں لے گئی. اور وہاں 20 25 26 سال کے نوجوان تھے جو آئیڈیا لے کے آتے تھے. اس آئیڈیا کے لیے پیسہ اکٹھا ہو جاتا تھا. ایک معاشرے کے اندر آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم تھا. اور وہ دیکھتے دیکھتے نوجوان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بھی بن گئے. امریکہ کا بھی ویلتھ کریشن، وہاں کی دولت بھی بڑھا دی. اور ساری دنیا کے اندر کتنے لاکھ نوجوانوں کو نوکریاں بھی اب دیتے ہیں. تو ہم نے یہ اب شروعات ہے. لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے اپنے نوجوانوں کو، کیونکہ مجھے پاکستان سے باہر اپنے پاکستانیوں کو دیکھنے کا بہت موقع ملا. پہلے کرکٹ کی ذریعے میں ساری دنیا میں جب جاتا تھا تو ہم پاکستانی ملتے تھے میچ دیکھنے، تو ان سے رابطے ہوتے تھے تب. اس کے بعد ابھی بھی میرا ان سے رابطہ رہا. تو وہاں آپ کو اتنی خوشی ہوگی دیکھ کے کہ ینگ پاکستانی ہیں، کیونکہ ایک سسٹم ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیا لے کے آئیں اور سسٹم اس کو بیک کرتا ہے. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہم ابھی تک وہ اپنا جو ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے اس کو پورا نہیں کر سکے. تو جو میں دیکھ رہا ہوں پختونخوا میں سب سے تیزی سے تھوڑے وقت کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پختونخوا میں جو بزنس سب سے تیزی سے بڑھے گی وہ ہے ٹورزم. یہاں علاقے جو پختونخوا میں ہیں وہ ناردرن ایریاز اور پختونخوا میں سب سے وہ اس طرح کے علاقے ہیں جدھر سے گرمیوں کے اندر ویسے لوگ آتے ہیں سارے پاکستان میں گرمیوں سے بچنے کے لیے. اور سردیوں میں ابھی شروع نہیں ہوئی پاکستان میں، لیکن میری یہ پیشن گوئی ہے کہ چند سالوں میں یہ بہت بڑی چیز بن جائے گی. وہ ہے سکینگ. جو سوئٹزرلینڈ کے اندر سکینگ کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں ہر سال تقریباً 80 ارب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے. اور سوئٹزرلینڈ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے دیکھ لیں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے. تو ہمارا یہ بہت بڑی ایک ریسورس ہے جس کا انشاءاللہ ہم یہ جس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی بیک کریں گے اپنی ٹورزم انڈسٹری بڑھانے کے لیے، اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو وہ ہے، دوسری آئی ٹی ہے. اب آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور اس کے اندر ہم نے اب پوری مدد کرنی ہے اپنے یوتھ کی، ان کو بیک کرنا ہے. وہ سب آئیڈیاز کی گیم ہوتی ہے. اور جب بھی ایک انسان میں ایک آئیڈیا آتا ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسی سسٹم کریٹ کریں. بینک آئے، وہ بلائے ان لوگوں کو، سنیں اس کے آئیڈیا کو اور پھر ان کو بیک کریں. اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے. اس میں آج بینک آف خیبر کو خاص تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس میں پوری طرح شرکت کر رہے ہیں. اور ادھر پنجاب میں بینک آف پنجاب بھی بڑی زبردست طریقے سے اس میں بھی مدد کر رہا ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی. اور اس کے علاوہ جو ہم افورڈیبل ہاؤسنگ بنا رہے ہیں، یعنی سستی، جو تنخواہ دار طبقہ تو جو گھر نہیں خرید سکتا اس کے لیے سستے قرضے کا بندوبست کر رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ میں. تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگے ہے. تو بینکس کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں، اس پروجیکٹ کی کامیابی میں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینکس اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا. میں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کی. اگلی ہم جائیں گے ساؤتھ وزیرستان. وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، وہاں بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بے روزگار ہے اس وقت. تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے قرضے دیں گے. جس طرح کا بھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں قرضے دیں گے. مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے لائف سٹاک. ہم دنیا میں
यानी हमारे पास गाय भैंस से लाइफ स्टॉक तो दुनिया में मेरे ख्याल में पाकिस्तान 9 या 10 नंबर पे है, लेकिन जो हमारी अगर गाय 2 लीटर दूध देती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वही यूरोप के अंदर और मुल्कों में, न्यूजीलैंड में वो गाय 6 गुना ज़्यादा दूध देती है वहाँ, और ये चाइना के अंदर 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा दूध देती है। तो सिर्फ हमने अगर ये जब नौजवान आएंगे और इसको साइंटिफिकली लाइफ स्टॉक को चलाएंगे, तो आपको अंदाज़ा सोचे जितने हमारी इस मुल्क में जगह है, हम लाइफ स्टॉक को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। अगर हम 2 गुना भी कर लें अपनी प्रोडक्शन दूध की, तो सोचें कि हम कितने ही अपनी आबादी का फ़ायदा करवा सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी हुई कि कम से कम 2 लोगों को मैंने देखा जिन्होंने लाइफ स्टॉक की फील्ड के अंदर उन्होंने कर्जे लिए हैं, तो मैं उनको भी मुबारक देता हूँ। और इंशाल्लाह अगला हम साउथ वज़ीरिस्तान में जाके अगला प्रोग्राम करेंगे। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म पेशावर में मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि बाहर के ममालिक में नौजवान आइडियाज़ लाते हैं, हुकूमत सपोर्ट करती है। KP में सबसे ज़्यादा सयाहत का बिज़नेस बढ़ेगा। KP में बहुत जल्द स्कीइंग शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक इस हवाले से मदद कर रहे हैं, हम घर खरीदने के लिए सस्ते कर्ज़ों का इंतज़ाम कर रहे हैं। उम्मीद है बैंक ऑफ पंजाब के साथ अब दीगर बैंक भी आगे आएंगे। खुशी हुई है कि लाइफ स्टॉक में भी अब लोग आ रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि हम इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम वज़ीरिस्तान में जाकर करेंगे। जमहूरियत की बहाली और इमरान खान को निकालने के लिए सिंध हुकूमत और कौमी असम्बली की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 31 जनवरी तक इमरान खान को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। ज़िया और मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला करने वालों को सिलेक्टेड निज़ाम का मुकाबला करना पड़ेगा। 31 जनवरी तक इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असम्बली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत के बहाली के लिए, इमरान और उनके सहूलतकारों को हटाने के लिए, पीछे हटाने के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर इस लॉन्ग मार्च को कामयाब होना है तो वही लोग जो ज़िया का आमरीत के मुकाबला करते थे, जो मुशर्रफ के आमरीत का मुकाबला करते थे, उनको मिलकर इस सिलेक्टेड निज़ाम का मुकाबला करना पड़ेगा। ये जो इमरान खान साहब की तंकीद है अपोजिशन की तरफ, एमनेस्टी नहीं देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ना है इसने दहशत गर्दों को छोड़ना है, अगर छोड़ना है इसने मुल्क दुश्मन को छोड़ना है, और अगर बंद करना है तो जमहूरी क़ुव्वतों को बंद करना है, अगर बंद करना है तो सियासी मुखालफीन को बंद करना है। मगर दहशत गर्दों और इस मुल्क के दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने में हमारा वज़ीर आज़म में ये हिम्मत नहीं है। इस्तीफे फुलझड़ी साबित होंगे, एटम बॉम्ब नहीं। ये इंतहाई कदम उठाना चाहते हैं कि जमहूरियत बंद गली में चली जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अगर अपोजिशन इस्तीफे देना चाहती है तो वज़ीर आज़म मुझे कह रहे हैं कि इन्हें कहो शौक से दे दें। इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो आएँ, लेकिन मैं दरमियानी मामलात चाहता हूँ। नून लीग ने इस्तीफे पहले पार्टी सदर को देना है। पूरा यकीन है शहबाज शरीफ इस्तीफों के बजाय सियासत को आगे ले जाने की बात करेंगे। यकीन है कि वो फुलझड़ी होगी, सियासी एटम बम नहीं होगा रेजिग्नेशन में। पीपल्स पार्टी जो है किसी गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं बनी और उसने जमहूरी प्रोसेस को हमेशा सपोर्ट किया। जो लोग बने वो इंतहाई कदम उठाना चाहते हैं ताकि जमहूरियत बंद गली में दाखिल हो जाए। इस्तीफे जो हैं पार्टी सदर को देने पड़ते हैं, इसलिए नून लीग ने पहले इस्तीफे शहबाज शरीफ को देने हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुस्बत सोच के साथ सियासत को आगे ले जाने की बात करेंगे। और शहबाज शरीफ भी मुज़ाकरात का हामी है और मुशावरत का हामी है। जब जिस शहबाज शरीफ को मैं जानता हूँ, अगर वो इस्तीफा देना चाहते हैं, कल इमरान खान ने मुझे कहा उन्हें को बड़े शौक से दो, और इमरान खान ने रात मुझे कहा कि वो जब आना चाहते हैं आए, लेकिन मैं दरमियानी चाहता हूं कि मामलात। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि तेल बहरान रिपोर्ट इस बात की तस्दीक है जो हम पहले ही जानते थे। तेल बहरान करप्ट तरीकों का बराह रास्त नतीजा था जो मुंतखब लोगों की नाअहली और नाक़िस फैसला साजी के बायस हुआ। इसी वजह से इसे जाने की ज़रूरत है।
मामूली खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं तमाम चोर NRO के लिए इकट्ठे हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने गैरतमंद कबाइल के लिए बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल करके अपनी फ्रस्ट्रेशन और घटियापन दिखाया है। महमूद अचकजई की लाहौरियों और महाजरों को जख्म देने की मजम्मत करता हूँ। इस सारी फ्रस्ट्रेशन NRO ना मिलने की वजह से है। PDM के स्टेज पर 70% चीनी चोर हैं। तमाम चोर इकट्ठे हो गए क्योंकि NRO चाहिए। जिसको KP में NRO चाहिए वो साउथ KP में जाते हैं। इज्जतदार गैरतमंद कबाइल को मौलाना फजल रहमान ने वहाँ गाली गलौज की एक जलसे में, उनके लिए बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल करना। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई है और अपना घटियापन भी दिखाया है, तो मौलाना साहब को अब पे माजरत करनी चाहिए। अचकजई साहब ने लाहौरियों को और पंजाबियों को घाव दिया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ और KP से बैठ के करता हूँ। जो महाजरों को जख्म दिया कराची में, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। किसी को टेलीफोन करने पे गुस्सा आ गया है और कोई गालियां देता फिर रहा है, ये तमाम वो फ्रस्ट्रेशन है बुनियादी तौर पर जो NRO ना मिलने की वजह से। और अब जवाब देना पड़ना है कि ये लूटमार कहाँ से है। स्टेज पे बैठ के कहते हैं चीनी चोर, जो 70% खुद चीनी वाले हैं। जैसे चीनी नीचे आई है, अब ये माफिया भी आहिस्ता आहिस्ता इनकी कीमत भी नीचे हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात का PDM की तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं। कठपुतली ने 31 जनवरी तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए रास्ता हमवार ना किया तो कोई शक में ना रहे, लॉन्ग मार्च होगा और इस्तीफे भी होंगे। मुकदमे और नैब की कार्रवाइयां हमारा रास्ता नहीं रोकेंगी। 30 जनवरी तक इस कठपुतली ने इस्तीफ़ा ना दिया, फ्री और फेयर इलेक्शन जो है उनके लिए रास्ता हमवार ना किया तो लॉन्ग मार्च होगा और इस्तीफे भी होंगे। ये कोई इस शक में ना पड़े। हीरोइन ड्रग्स मेरे ऊपर डाली, पीते खुद हैं, केसेस हमारे खिलाफ बनाते हैं। जब हम इनको कहते हैं कि भाई ये झूठे केस ख़त्म करो, ये 15 किलो हीरोइन जो है ये तुम्हारी है, तुम अपने ऊपर जो है उसको डालो या मंगवा लो इसे, बाकी ज़िंदगी जो है वो खुद भी पियो और बाकियों को भी पिलाओ, तो कहते हैं जी ये हम मुझसे NRO मांग रहे हैं। ये मुकदमे जो हैं और ये नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं ये बिल्कुल हमारा रास्ता नहीं रोकेंगी। कोई तल्लक नहीं है PDM की तहरीक का सेनेट के इलेक्शन से। ये फरवरी में कराएं, ये जनवरी में करवा लें, ये अप्रैल में ले जाएं। FIA और एंटी करप्शन अफसरान के नाम और कवायद पता है, इतना जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त कर सकें। नून लीगी तर्जुमान की सरकारी एहलकारों को धमकियां। मरियम औरंगजेब कहती हैं आपके झूठों ने कहा कि जलसा छोटा था, फिर जलसे के बारे में बातें करके हलकान क्यों हो रहे हैं। अता तारड़ बोले आपको कोई NRO नहीं मिलने वाला, आप जल्द जेल जाएंगे और आपको तमाम सहूलतें मिलेंगी। आपके झूठों ने कहा कि जलसा छोटा था। सराय के तर्जुमान और वजीर आजम हलकान क्यों हो गए हैं जलसे के बारे में बातें और ट्वीट कर करके। नैब चेयरमैन से मेरा सवाल है, आप कहते थे हम फेस नहीं हम केस देखते हैं। 20 अरब महाना नुकसान LNG में करप्शन हो रही है, आपको नजर नहीं आ रही। 550 अरब चीनी की मद में पाकिस्तान का चोरी हो गया, लेकिन आपको नदीम बाबर, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इमरान साहब का फेस नजर नहीं आता। 31 जनवरी आपके पास डेडलाइन है। अब मुल्क की कौमी सलामती और मुल्क की मईशत आपकी इस चोरी, नालायकी और नाअहली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको कोई NRO नहीं मिलने वाला, आप इंशाल्लाह जेल जाएंगे और आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी। FIA के अफसरान और एंटी करप्शन के अफसरान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमें आपके नाम पता है, हमें आपकी कवायद भी पता है। आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, इमरान नियाजी के जाती मुलाजिम नहीं है। इतना करें जुल्म जितना कल को बर्दाश्त कर सके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA एंटी करप्शन विंग ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। जुल्करनैन हैदर से मजीद जानेंगे। जुल्करनैन बताइएगा मजीद क्या डिटेल है इसकी। जी बिल्कुल, FIA एंटी करप्शन विंग लाहौर में FIA ने ये मुकदमा दर्ज किया था कि 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जो है उनके पास मौजूद हैं और उस पर आई जेल खाना जात को खत लिखा गया है कि शहबाज शरीफ और अब्दुल शहबाज से तहकीकात करनी है तो उस हवाले से इल्जामात किए जाएं, क्योंकि इस वक्त दोनों गिरफ्तार हैं तो दोनों से जो तहकीकात का सिलसिला है वो कोर्ट लखपत जेल में ही किया जाएगा। FIA ज़राए का ये कहना है कि FIA के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं और जो मुलाजमीन थे इनके उन्होंने बयान दिए थे कि जितनी भी जो रकम है वो मनी लॉन्ड्रिंग की थी वो सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के रेफरेंस की थी और शहबाज शरीफ पर भी यही इल्ज़ाम है कि अपने बेटों पर इन्होंने सरपरस्ती की है और इनकी सरपरस्ती में ही तमाम जो रकम है वो मनी लॉन्ड्रिंग की। जुल्करनैन बहुत शुक्रिया।
फिरदौस आशिक अवान ने एक बार फिर मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा शरीफ खानदान में पड़ने वाली दरारों के गवाह बिलावल भुट्टो भी बन गए हैं। जेल में शहबाज शरीफ के कोरे जवाब के बाद मरियम नवाज का बयानिया मुस्तरद हो गया। दबाव हुकूमत पर नहीं बल्कि तारीख पर तारीख देने वालों पर है। उन पे है जिन्होंने डेट्स दी हैं, दबाव उन पे है जिन्होंने कई दफा आर पार किया और फिर आर पार तो कुछ ना हुआ सिवाय खबार होने के। हुकूमत पे दबाव नहीं है, इनके गले में तोक डाल के हाथों में जंजीरें डाल के इनको खींचे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मासूमाना बचगाना मेरे शहजादे की ख्वाहिश है। जिन्होंने हुकूमतों को घर भेजना होता है वो डेढ़ माह बाद की डेटें नहीं देते, इमीडिएटली कर गुजरते हैं। जो शरीफ खानदान की दराड़ें थी उनका अल्हम्दुलिल्लाह गवाह जो हैं वो बिलावल साहब भी हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने कोरा चिट्टा जवाब बिलावल भुट्टो साहब के सामने थमाया। मेरे इख्तियारात कोई और इस्तेमाल करता रहा। मैं पार्टी का सरबराह हूँ और पार्टी के फैसले मैं करूँगा। मरियम बीबी क्या कहती हैं, मरियम बीबी का क्या बयानिया है, वो बयानिया मरियम बीबी नहीं दे सकती। इसका मतलब है कि मरियम बीबी की पार्टी से तो हो गई छुट्टी। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में गवाह ने शहबाज शरीफ की बतौर रुकने असेंबली तनख्वाहों और मराद का रिकॉर्ड पेश कर दिया। शहबाज शरीफ की वकील ने नैब के 2 गवाहान से जिराह मुकम्मल कर ली। अदालत ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तौसीह देते हुए समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, नैब की 2 गवाहान से जिरा मुकम्मल। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने गवाह फैसल बिलाल और तैयब जव्वार बुखारी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर पर जिरा की। मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तौसीह। नैब गवाह ने शहबाज शरीफ की बतौर रुकने असेंबली तनख्वाहों और मराद का रिकॉर्ड पेश किया। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि जो गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं इनको क्लियर करना चाहता हूं। अपना इलाज अपनी जेब से कराया, कभी सरकारी रिहाइशगाह इस्तेमाल नहीं की। बतौर चीफ मिनिस्टर कभी अपनी गाड़ी पर झंडा नहीं लगाया। नैब के गवाह ये सारा रिकॉर्ड भी अदालत में पेश करें, जिस पर गवाह ने बयान दिया कि 1988 से 90 तक शहबाज शरीफ ने सैलरी नहीं ली। शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि जो चीजें नहीं ली इसका जिक्र नहीं किया। कौम के अरबों रुपए बचाए, गैर मुल्की दौरों में अखराजात का कभी एक ढेला नहीं लिया। अदालत ने समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद शहबाज शरीफ का अदालत में ही मेडिकल चेकअप भी करवाया गया। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, 24 घंटे में 105 अफराद जान से गए। 2731 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 48,369 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर, एक ही रोज में मोहलिक वायरस मजीद 105 जाने निकल गया। कुल अमवात 9010 हो गयी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में 38,028 टेस्ट में से 2,731 केसेस मस्बत आए। सिंध में 58 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के फैलाव का तनासुब सबसे ज्यादा कराची में 18.76% तक पहुँच गया। पंजाब में मोहलिक वायरस ने 26 अफराद को शिकार किया। कोरोना केसेस की शरह 3.2%। रावलपिंडी में 6.215। इस्लामाबाद में वायरस के फैलाव की कम तरीन शरह 2.94% रही। कोयटा में मस्बत केसेस की शरह 5.8% रिकॉर्ड की गई। आजाद कश्मीर में मस्बत केसेस की शरह 5% और गिलगित बल्तिस्तान में 1.6% रही। KPK में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 11.3% और पेशावर में 15.99% है। मुजफ्फराबाद में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.8 और मीरपुर में 5.31% है। कराची ले चलेंगे आपको। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। यानी शो ऑफ हैंड्स की बात की गई कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए से इलेक्शंस करवाए जाएंगे और एक अजीब नई मंतक सामने लाने की कोशिश की गई, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त पार्लियामान के अंदर नंबर्स मौजूद नहीं है कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर सके दोनों ऐवानों में और आइन के अंदर तरमीम कर सके। लिहाजा एक वॉप्ड
लॉजिक, एक वॉर्प्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देने की कोशिश हुकूमत कर रही है। पहली तो बात ये है कि आज ये इलेक्शंस जो हैं, ये आइन, सेनेट के इलेक्शंस आइन के तहत हैं। आर्टिकल 59 के तहत ये इलेक्शंस हो रहे हैं, लिहाजा इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके इलेक्शंस के तरीक़ेकार को तब्दील नहीं किया जा सकता, जैसे कल काबीना में ये तासुर देने की कोशिश की गई। इलेक्शंस आर्टिकल 59 बड़ा वाज़े है, आर्टिकल 59 तरीक़ेकार देता है, आर्टिकल 59 कौन कब रिटायर होगा सेनेटर वो देता है, किस तरह ये इलेक्शंस होंगे वो देता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आर्टिकल 89 के अंदर 59 के अंदर ये बात मौजूद है कि इलेक्शंस जो हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर होंगे, और ना सिर्फ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आइन कहता है, बल्कि आइन यहां तक जाके कहता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का के पीछे एक फलसफा जो है वो मौजूद है। और जब आइन को 1973 के अंदर बनाया गया तो जो पेरेंट नेशनल असेंबली थी उसकी अगर आप वर्बेटम तकरीरें उठा के देख लें तो उसमें आपको ये बात वाज़े तौर पे मिलेगी कि उसके पीछे फलसफा क्या था। और वो फलसफा ये था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसलिए होगा ताकि सूबे के अंदर, सूबाई असेंबली के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल थॉट रिप्रेजेंटेड है वो मेन स्ट्रीम फेडरेशन का हिस्सा बने और वो सेनेट के अंदर आए और वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, ताकि ये कोई भी पार्टी या एथनिक ग्रुप या लिंग्विस्टिक ग्रुप ये ना सोचे कि वो मेन स्ट्रीम का, मेन फेडरेशन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अगर आप शो ऑफ हैंड्स इस वक्त करेंगे तो जो पहली एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास मेजॉरिटी है, यानी ट्रेजरी और मेन ऑपोजिशन पार्टी, उन्हीं के सेनेटर्स आएंगे। लेकिन आपने ये देखा कि मुख्तलिफ असेंबली से और बिलखुसूस छोटे सूबों से नेशनलिस्ट जमातें जो हैं वो 5-5, 6-6 MPs के साथ एक सेनेटर को सेनेट में भेजती रही हैं। लेकिन अगर ये तरीक़ाकार अपनाया गया तो नेशनलिस्ट पार्टीज को एक सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा सेनेट के अंदर। इसी तरह जो रिलीजियस जमातें हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन सेनेट के अंदर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनके पास इतने नंबर्स नॉर्मली सूबाई असेंबलियों में नहीं होते। तो ये मजीद पोलराइजेशन की तरफ एक कदम है, और जो बेसिक फलसफा और जो बेसिक बात आइन के तहत कही गई है उसको, उसकी नफी आप करने जा रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शंस के अंदर पैसे चले और चलते हैं, लेकिन इस तरीक़ेकार को खत्म किया जा सकता है। और इस तरीक़ेकार को खत्म करने के लिए 2015 की आखिर में और 2016 के इब्तिदाइये के अंदर सेनेट की कमेटी ऑफ द होल बैठी थी, और सेनेट की कमेटी ऑफ द होल ने बैठ के इस मसले पे कि किस तरह ट्रांसपेरेंसी सेनेट के इलेक्शंस में लाई जा सकती है उसको मद्देनजर रखते हुए एक तफसीली बहस हुई,
दीगर दुनिया के अंदर जो तरीक़ेकार हैं उन पे नजर डाली गई और उसके बाद एक यूनानिमस रिपोर्ट, कोई इख्तलाफी नोट उस रिपोर्ट में नहीं था, पीटीआई भी उस रिपोर्ट का हिस्सा थी। एक यूनानिमस रिपोर्ट जिसमें एक तरीक़ेकार वज़ह किया गया है, जिसमें सीक्रेसी ऑफ बैलेट भी रहे, लेकिन अगर ये पता करना हो कि किस एमपीए ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, वो तरीक़ेकार उस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। और उस रिपोर्ट का हिस्सा जो 40 से ज्यादा सेनेटर्स जिन्होंने गुफ्तगू की, उन सब का वर्बेटम उस रिपोर्ट का हिस्सा है। लिहाजा न सिर्फ आर्टिकल 220। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।